Good evening, everybody. Okay, Bache, today we'll be solving a question paper. This is from a school that I have got a question paper. We'll just go through it. It had some good questions, तो मैंने बोला चलो ये question paper मैं आपके साथ share करूंगा and we'll be discussing this through. All right, चलो. रितंजय ने already एक question का answer दे दिया है, उसको बहुत easy लगा वो answer. चलो, question number 1. Which of the following is a correct measure of velocity? अब बच्चे velocity is a vector quantity. ये vector quantity है, so it has both magnitude as well as direction. तो बच्चे इसमें सही जो लिखा हुआ है this is D option. 30 मीटर पर सेकेंड साउथ. आपको इसमें मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है. ऑलराइट, अगर हम सिंपली 30 मीटर पर सेकेंड लेंगे तो वो स्पीड हो जाएगी. Velocity is vector quantity, so it has to have both magnitude as well as direction. तो D option. उसके बाद है बच्चे question 2. For a body performing motion with uniform speed, the distance time graph is. अगर बच्चे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनेगा. ओके, straight line to parallel axis or curved line. All right, uniform speed, distance time graph. What do you think? क्या ऑप्शन आना चाहिए? Distance, time. This is showing constant speed. Option B, straight line inclined to time axis. Okay, straight line which is inclined to time axis. All right, B option. Correct, बिल्कुल सही. Straight line which is inclined to time axis. Inclined मतलब एक particular angle पे straight line निकलेगी. So option B. All right, question 3. From the graph, given VT graph, it can be inferred that. बच्चे this is velocity time graph. तो ये क्या शो कर रहा है? Straight line है parallel इसके साथ time axis. It is showing object is traveling with uniform motion or is it at rest? बच्चे we will say it is at rest क्योंकि बच्चे उसकी velocity change नहीं हो रही. Oh, just a moment. It is traveling with constant velocity. Constant velocity से चल रही है. तो बच्चे we will say it is traveling in uniform motion. A option. Third A. Rest पे नहीं, uniform motion. क्योंकि बच्चे उसकी velocity change नहीं हो रही, same velocity है. Okay, तो 3A in uniform motion. Question 4. Which of the following figures correctly represents uniform motion of a moving object? Uniform motion of a moving object. बच्चे अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो A, फोर्थ का A. और ये क्वेश्चन सिमिलर है जो इन्होंने सेकंड में पूछा था. सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है. ऑलराइट, ओके. क्वेश्चन 5. When unbalanced forces act on a body, when unbalanced forces act on a body, the body must move with uniform velocity, must remain at rest, must experience acceleration, must move in a curved path. बच्चे देखो, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर सकती, रेस्ट पे नहीं रह सकती. इट मस्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन. 5C करेक्ट. अनबैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन होगी. क्वेश्चन नंबर 6. मस्ट फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बॉडी of mass 16 kg to come to rest from uniform velocity of magnitude 10 meter per second when force 4N is applied. Okay, the force is 4 Newton. Mass किसके equal है? 16 kg. It is moving with uniform velocity of 10 meter per second. So initial velocity is 10 meter per second and final velocity is 0. You have to find time. तो बच्चे यहाँ टाइम कितना होगा? हम यहाँ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? F इज इक्वल टू m v माइनस u ओवर t. तो टाइम फाइंड करना है
टी ऊपर आ जाएगा, लेट्स पुट टी हियर, एफ यहां आ जाएगा, वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा 16, ओके 16 इंटू -10 p माइनस u, 0 -10, ओके, तो बच्चे ये हो जाएगा, ऑलराइट, सो 16 इंटू v माइनस u हो गया, ओके, तो ये हो गया आपका ऑलराइट, 10 -10 ओवर f कितना है, एफ भी नेगेटिव फोर्स ही होगी क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स है, तो -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4, 40 सेकेंड, ओके, सी ऑप्शन, 40 सेकेंड, ऑलराइट, तो आपका बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, masses of two bodies are in ratio 5:6 and their velocities are in ratio 1:2, then their linear momentum will be in ratio, तो बच्चे 5 into 1 कर दो, 5 रेशियो, मोमेंटम फाइंड करनी है, मास इंटू वेलोसिटी कर दो, 6 into 2 12, तो बच्चे 5:12 आएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन, 5:12, उनकी जो मास की रेशियो है उसको वेलोसिटी की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोमेंटम की रेशियो आ जाएगी, 5 into 1 5, 6 into 2 12, तो 5:12, इज इट क्लियर एवरीबडी, सबको समझ आ गया, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, a ball is thrown vertically upward in a train moving with uniform velocity, the ball will, बच्चे एक ट्रेन में बॉल ऊपर फेंकी गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो जो बॉल है वो कहां आएगी, फॉल बिहाइंड द थ्रोअर, फॉल अहेड, रिटर्न बैक, फॉल ऑन द लेफ्ट ऑफ द थ्रोअर, बच्चे इसका सही ऑप्शन है रिटर्न बैक, क्योंकि बच्चे ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बॉल की जो इनिशियल होगी वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रेन के साथ ही है, तो बच्चे थ्रोअर के पास ही बॉल वापस आएगी, पर अगर बच्चे ट्रेन एक्सलरेटेड है तो बॉल पीछे गिरेगी थ्रोअर से, और अगर ट्रेन में स्पीड कम हो रही है तो बॉल आगे गिरेगी, पर बच्चे अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो थ्रोअर के पास ही वापस आएगी, इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन 8C, आपको याद ये रखना है कि जो थ्रोअर है और जिस ट्रेन में वो बैठा है वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो जब बॉल को फेंकोगे तो बॉल भी उसी वेलोसिटी से आगे की साइड जाएगी, तो बच्चे वो थ्रोअर के पास ही वापस है, ओके, 9th, the following substances are added to water in a beaker as shown below, soil plus water, common salt plus water, सैंड प्लस वाटर, चॉक, इसमें से ट्रू सोल्यूशन कौन बनाएगा, तो बच्चे कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके, बीकर बी, ऑलराइट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द अपरेटस, डिस्टिलेशन फ्लास्क, सेपरेटिंग फनल, ये तो सेपरेटिंग फनल है, बहुत इजी है, इधर ऑयल और लिक्विड, ऑयल और वाटर, सेपरेटिंग फनल, इट इज सेपरेटिंग फनल, ऑल राइट, क्वेश्चन 11, a solution has been prepared by dissolving 10 gram of urea in 90 gram of water, तो बच्चे 10 ग्राम इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो 10 + 90 100, तो मास ऑफ सोल्यूशन हो गया 100, तो 10/100 into 100, 10%, आंसर इज 10%, ऑल राइट, क्वेश्चन 12, बच्चे इस फिगर के अंदर क्या दिखाया गया है, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, ऑलराइट, इस फिगर में क्या शो किया गया है, ब्राउनियन मोशन,
तो बच्चे ब्राउनियन मोशन क्यों होता है? जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ जब क्या करेंगे, टकराएंगे, तो वो रैंडमली मूव करेंगे फिर पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो बच्चे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, इम्पैक्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन कोलॉइड्स। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का टक्कर होगी तो उससे आपको ब्राउनियन मोशन दिखेगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? ऑल राइट, सबसे पहले बच्चे ये बायोलॉजी में डिस्कवर हुआ था। पोलन ग्रेन को अगर हम सोल्यूशन में डाल दे तो पोलन ग्रेन जो है रैंडमली मूव करता है, उससे ब्राउनियन मोशन का टर्म आया। ओके, क्वेश्चन 13, पिक द करेक्ट लेबलिंग इन द डायग्राम। बच्चे दिस इज शोइंग अ न्यूरॉन, साइटोन दिखाया हुआ है, न्यूरॉन का पार्ट। तो बच्चे डेंड्राइट इज करेक्ट, साइटोन गलत, न्यूक्लियस फ्लैजेला। ओके, कौन सा सही ऑप्शन है? डेंड्राइट, डेंड्राइट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 14, which of the following is squamous epithelium tissue? बच्चे स्क्वामस एपिथेलियम कौन सा है? स्क्वामस में फ्लैटेंड सेल्स हैं। हाँ जी रितन जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर 13 क्वेश्चन नंबर में जो न्यूक्लियस है वो सर सही तो दिखा रहे हो उसमें। बच्चे आपने एक चीज ये नोटिस नहीं की कि दोनों लेबलिंग एक ही जगह पे है। यस सर। तो साइटोन और न्यूक्लियस एक ही चीज को दो नाम साइटोन कैसे गलत दे जगह पे सकते हो? दिखाया है लेकिन न्यूक्लियस तो सही जगह पे दिखाया है। तो बच्चे एक ही चीज के दो अलग नाम कैसे हो सकते हैं, एक गलत और एक सही? या तो सिर्फ इसको न्यूक्लियस दिखाते। लेकिन तो सर साइटोन गलत हुआ ना, न्यूक्लियस तो सही है ना। बेटा एक ही स्ट्रक्चर के लिए दो लेबलिंग्स दिखाई है, एक लेबलिंग गलत है, एक लेबलिंग सही है। तो हम ये थोड़ी बोल सकते कि न्यूक्लियस लेबलिंग सही है तो हम वो पिक कर लेंगे, साइटोन गलत है, ऐसे नहीं कर सकते ना। यू हैव टू पिक द करेक्ट लेबलिंग। तो करेक्ट लेबलिंग किधर है? डेंड्राइट्स। ओके सर। समझ गए ओके ना? सर। एक ही स्ट्रक्चर को वो पहले साइटोन कह रहे हैं फिर न्यूक्लियस कह रहे हैं, तो गड़बड़ है ना। अब इसमें ये श्योर कर लो कि डेंड्राइट्स की तरफ ही ये एरो पॉइंट कर रहा है कि किधर पॉइंट कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो ये डेंड्राइट्स की तरफ पॉइंट करता हुआ दिख रहा है, तो मैं तो डेंड्राइट्स पिक करूंगा, क्योंकि इसमें साइटोन और न्यूक्लियस एक ही स्ट्रक्चर की लेबलिंग है और एक गलत है और एक सही है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वामस एपिथेलियम सेल? बच्चे इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये ह्यूमन चीक सेल में दिखेंगे ऐसे, ये क्यूबॉइडल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, given below are diagrams of plant cell and animal cell. Select correct option that represent cell organelles which are present in both plant and animal cells. आपको बच्चे कॉमन सेल ऑर्गेनलीज निकालने हैं दोनों के जो सही हैं। अब देखो यहाँ इसमें पहले सेल वॉल लिख दिया, दिस इज रॉन्ग, ये ऑप्शन हम पिक नहीं कर सकते। दूसरा है न्यूक्लियस, सेंट्रोजोम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, ये करेक्ट हो सकता है। प्लास्टिड आ गया, रॉन्ग, इसमें भी प्लास्टिड है, गलत। तो बच्चे सही ऑप्शन यही बनता है, ये दोनों में कॉमन मिलेंगे, न्यूक्लियस, सेंट्रोजोम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम। अब आपने अगर सेल वॉल वाला पिक कर लिया तो बच्चे सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में तो है नहीं, तो दिस विल बी रॉन्ग। प्लास्टिड अगेन, प्लास्टिड अगेन, तो बचा बी। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 15? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द टिश्यू। अब बच्चे ये बिल्कुल सही है, टिश्यू का जो मैट्रिक्स का नेचर है वो टिश्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
फैट्स आर स्टोर्ड बिलो स्किन एंड इन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। epithelial tissues have intercellular spaces, बच्चे this statement is wrong. epithelial tissues are tightly packed. epithelial tissue के जो cells होते हैं वो tightly pack होते हैं, तो C ऑप्शन गलत है। D ऑप्शन, cells of striated muscles are multinucleated and unbranched, तो बच्चे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल राइट, ओके, तो बच्चे सी ऑप्शन यहां पिक करेंगे जो गलत है। ओके, चलो नाउ लेट्स डू दी मैचिंग। एसईआर, एसईआर का क्या रोल है? डिटॉक्सिफिकेशन। एसईआर का क्या रोल है? डिटॉक्सिफिकेशन। लाइसोसोम का क्या रोल है? लाइसोसोम इज एक्टिंग एज अ सुसाइडल बैग। न्यूक्लियोइड, it will be seen in bacteria which is prokaryotic cell. Okay, food vacuole, it is seen in amoeba, digestion में help करेगा। and chromatin and nucleolus is seen inside the nucleus। तो बच्चे अब मैचिंग करके देखो, ए का 4, ए का 4 सिर्फ ए में है, तो बच्चे मेरे हिसाब से तो ये है। SER helps in detoxification. Lysosomes is acting as suicidal bag, B का 5. Nucleoid is in bacteria, C3. Food vacuole is in amoeba, D1. Chromatin material and nucleolus, it is in nucleus. All right, तो 17A. All right, very good. चलो आगे, pick the odd one out। इसमें odd one out निकालो। odd कौन सा है? axon। axon is part of nucleus, sorry not nucleus, neuron। ये एनिमल सेल, एनिमल टिश्यूज में आता है, ये सब बच्चे प्लांट टिश्यूज हैं। ओके, आगे बच्चे सेलेक्ट दी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें से डबल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेली कौन सी है? ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑल राइट बच्चे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है? माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है? चेक करो, पहले चेक करिए। बच्चे ये देखो, दिस इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, बताइए। लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन। ऑल राइट, व्हाट अबाउट प्लास्टिड्स? प्लास्टिड सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन? ओके, बताइए। बच्चे इसमें देखो, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। आई थिंक ये सिंगल मेम्ब्रेन पूछना चाह रहे थे, क्वेश्चन गलत है। प्लास्टिड्स आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन है। ओके, क्या पिक करेंगे इसमें? ये तो क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, लाइसोसोम। अगर हम डबल की जगह सिंगल कर दें तो फिर सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर? ओके, ऑलराइट, ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20। A nail is
interested. Okay, this is wrong. Inserted in trunk of tree at height of 1 meter from ground level. After 3 years, the nail will. बच्चे अगर हम ट्री की साइड में नेल लगाएं 1 मीटर की हाइट पे, और 3 साल के बाद जब ट्री बड़ा होगा तो नेल कहां जाएगा? विल इट रिमेन एट सेम पोजीशन, विल इट मूव अपवर्ड्स, और विल इट मूव डाउनवर्ड्स? क्या होना चाहिए बताओ? व्हाट शुड हैपन? सेम प्लेस. ओके, इट शुड रिमेन एट सेम प्लेस. सेम प्लेस पे रहना चाहिए. ओके, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोथ है, सहजप्रीत ट्राई करने की जरूरत नहीं है. सहजप्रीत बच्चे ट्राई करने की जरूरत नहीं है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो ग्रोथ है वो टिप्स पे ही होती है. ऑलराइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो ग्रोथ है वो टिप्स पे ही होती है. ठीक है, तो जहां आप नेल लगाओगे वो वहीं की वहीं रहेगी. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन पोजीशन. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21. A person met with an accident in which 2 long bones were dislocated. तो इसका फॉलोइंग, इसके पीछे रीजन क्या होगा? बच्चे बोन्स डिसलोकेट हो गई हैं तो लिगामेंट ब्रेक. एब्सोल्युटली राइट वैदेही, यू आर एब्सोल्युटली राइट. लिगामेंट ब्रेक, बिल्कुल सही. लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, टेंडेंस कनेक्ट बोन टू मसल्स, तो लिगामेंट ब्रेक हुआ है. उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 22. मैच द कंटेंट्स ऑफ कॉलम ए एंड बी एंड चूज करेक्ट ऑप्शन. बच्चे एरेनकाइमा, it will provide buoyancy. Collenchyma, localized packing. Parenchyma, thin walled. Okay, photosynthesis, carbon fixation. Permanent tissue, sclerenchyma. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चे? ए का 2. ए का 2 सिर्फ एक में ही है और ये रहा आंसर, डी ऑप्शन. ऑलराइट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही. चलो आगे. Okay. Question 23. Complete the following table. बच्चे this is flow chart showing different types of tissues, plant tissues. तो यहां बच्चे आएगा complex, xylem, phloem, parenchyma, sclerenchyma. Okay. तो ऑप्शन देखिए कहाँ है. 1 complex, ये रहा. 1 complex, 2 parenchyma, 3 sclerenchyma, 4 is phloem. ठीक है बच्चे. 23C. All right. चलो क्वेश्चन नंबर 24. राइट ट्रू और फॉल्स. epithelial layer is permeable layer. Epithelial tissue is protective tissue in animal body. Vijay, what do you think? Is epithelial tissue permeable? बच्चे epithelial tissue is not permeable. वैदेही absolutely right, बिल्कुल सही. Very good. तो बच्चे इसका सही आंसर है C. 1 is false, 2 is true. All right. Epithelial layer is impermeable. ठीक है. All right, very good. चलो assertion reason. If a particle is moving with constant velocity
then average velocity for any time interval is equal to instantaneous velocity. अगर बचे एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. तो बचे assertion is true. assertion is true. एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कब इक्वल होगी? अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. If average velocity of a particle moving on a straight line is 0 for a given time interval, then instant velocity at same instant within this interval may be 0. What do you think? अगर बचे एवरेज वेलोसिटी किसी पार्टिकल की जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है 0 है गिवन टाइम इंटरवल के लिए, तो देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट विद इन दिस इंटरवल में भी 0. पर बच्चे हमें ये डिसाइड करना है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी 0 कैसे हो सकती है? मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया, रेस्ट. ओके, तो ये भी ट्रू हो गया. अब बताओ रीजन इज करेक्ट. असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है. यस, अगर एवरेज वेलोसिटी 0 मान के चल रहे हो तो यू शुड पिक इट अप एज ए. यस, ए ऑप्शन ही आना चाहिए इसका, क्योंकि अगर बचे एवरेज वेलोसिटी 0 है, इंस्टेंट वेलोसिटी भी 0 हो गई, तो कांस्टेंट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट. All right. Question number 26. When a firefly hits a bus, each of them exerts same force. ये तो रितंजय का क्वेश्चन आ गया. रितंजय ने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था एक बार. एक फायरफ्लाई बस पे हिट हुई, both of them exert the same force. Firefly has more mass as compared to windshield. बच्चे this is wrong. Reason तो बिल्कुल गलत है. Assertion is true. So which option will you pick? C. Is it clear? C option आएगा. All right. Question number 27. A mixture of camphor and ammonium chloride can be separated by sublimation. बच्चे this is wrong. Camphor और ammonium chloride दोनों की sublimation होती है, तो दोनों को एक साथ कैसे अलग करेंगे? सब्लिमेशन से. तो इसका इन्होंने रीजन दिया है कैम्फर ऑन हीटिंग सब्लाइम्स, अमोनियम क्लोराइड डज नॉट. तो बच्चे ये रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है. इज इट क्लियर? तो ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया. अगर कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है तो दोनों को हम सब्लिमेशन से कैसे अलग कर सकते हैं? आप हीट करोगे तो दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में. तो बच्चे ये तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई. फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 28. A mixture of acetone and methanol can be separated by fractional distillation. बच्चे this statement is true. इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है बहुत कम है. The difference between their boiling point is less. ये सही है. तो बच्चे assertion A आएगा इसका ऑप्शन. Assertion is true, reason is true and reason is correct explanation. फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 29. All the existing animals of earth are multicellular. बच्चे this statement is true. एनिमल्स जो अर्थ पे हैं बच्चे वो मल्टीसेलुलर है. सेल वॉल इज रिकॉर्डेड नहीं, ऑब्जर्व्ड होना चाहिए. तो बच्चे ये गलत है स्टेटमेंट. सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. उसके बाद बचे क्वेश्चन 30. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल. न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? पेरिफेरी ऑफ द सेल पे.
Central vacuole occupies majority of space of the cell. बच्चे अमीबा जो है, अमीबा comes in kingdom Protista. अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, एनिमेलिया में नहीं आता। किंगडम प्रोटिस्टा में आता है अमीबा। अमीबा जो है किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, किंगडम एनिमेलिया में नहीं आता। ओके, अभी सुचिता, इज दैट क्लियर? तो मैं तो उस हिसाब से आंसर कर रहा हूं। अगर मैं किंगडम एनिमेलिया में देखूं तो सब मुझे मल्टी सेलुलर मिलेंगे। अमीबा इज यूनिसेलुलर। आपकी जो बचे लिविंग वर्ल्ड है वो 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दे कम अंडर प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। बचे किंगडम एनिमेलिया में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो एग्जिस्टिंग एनिमल्स तो मैं किंगडम एनिमेलिया के हिसाब से आंसर कर रहा हूं, और दे आर मल्टी सेलुलर। इज इट क्लियर? लिविंग वर्ल्ड को आप 5 किंगडम में डिवाइड करते हो। मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया आ गए, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स आ गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई में डीकंपोजर्स आ गए, प्लांटी में प्लांट्स आ गए, एनिमेलिया में एनिमल्स आ गए, और एनिमेलिया में सब मल्टीसेलुलर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी ऑफ द सेल। अब अच्छा, इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ है, इसमें प्लांट सेल लिखा होना चाहिए। रीजन, सेंट्रल वैक्यूल ऑक्युपाइज मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस ऑफ प्लांट सेल। तो इसमें प्लांट सेल नहीं लिखा हुआ। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये ए ऑप्शन बनेगा प्लांट सेल की करेक्शन के बाद। बच्चे बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनेरा। अभी सूचिता, बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आता है। मोनेरा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मोनेरा। मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यूकैरियोटिक। इज इट क्लियर? बच्चे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो वो मोनेरा के अंदर आएगा। क्लियर? चलो ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 31, मैच दी कॉलम, कॉलम 2। तो बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम चेंज। ओके, बताइए क्या पिक करें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या पिक करना चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या पिक करना चाहिए? इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ये होना चाहिए इक्वल वेलोसिटी चेंज। इनके क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स भी हैं। इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल टाइम चेंज। तो बच्चे टी ऑप्शन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज इन टाइम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चे यहां जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा? ए का एस, ए का एस सिर्फ 2 में ही है, इधर
ए का S, B का Q, C का T, D का R, E का P। तो बचे ये सही है हमारा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शन डी क्यों पिक करें? ए का S, B का R। बच्चे B का R कैसे आएगा? B is constant speed. All right. तो बच्चे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अरे बाप रे, इतनी मैचिंग। ओके चलो मैचिंग करिए। मोर देन वन करेक्ट। एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। उसके बाद बचे क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। काय के लिए? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स कम करनी है उसने। फिर है बचे रॉकेट प्रोपल्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, बैलेंस्ड फोर्स, a ball is thrown upward in a train moving with uniform velocity, returns to the thrower. Okay, ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? ऑलराइट, पहले ये पिक कर लेते हैं। ओके, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो गलत है, इट शुड बी kg मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, उसके बाद है अब टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज। इनके पेपर में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इनर्शिया, inertia of body depends on, okay, inertia of a body depends on its mass। तो बचे बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, इसका ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ऑलराइट, चलो अब पिक करो ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन पिक करोगे? ए का 6, ए का 6 दो में है, बी का 4, ओके, वो भी दोनों में है, सी का 7 वो भी दोनों में है, डी का 1। ऑल राइट, तो बच्चे हमें आंसर मिल गया, इट इज बी ऑप्शन। क्लियर? बी ऑप्शन। ऑल राइट, चलो आगे। A man throws a ball weighing 200 grams vertically upwards with velocity of 10 meters per second. Its momentum at the highest point, बच्चे momentum at the highest point क्या होगा? It will be 0, क्योंकि जब वो highest point पे पहुंचेगी तो v 0 हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो मोमेंटम 0 होता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? 33 का डी, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ओके, तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑल राइट, क्वेश्चन 34, when a number of forces acting simultaneously on a body bring about a change in its state of rest or of uniform motion in a straight line, then these forces acting on the body are said to be unbalanced forces। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में चेंज होता है तो बच्चे दैट, उस केस को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड। इफ यू whirl a stone on the end of the string and the string suddenly breaks, the stone will
बच्चे इसका सही ऑप्शन है फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट टू इट्स सर्कुलर पाथ। इस तरीके से। इज इट क्लियर? 35A टेंजेंट पे देखते हैं सर्कुलर पाथ में। ऑल राइट, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। A particle completes one rotation along a circular track having radius 14 meter in 44 seconds. Then the speed of that particle will be, बच्चे 2 pi r by 44 करो, 2 into 22 by 7 into 14 by 44, तो 2 2 2, तो करेक्ट आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चे सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, टाइम आपको दिया हुआ है 44 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 पाई आर बाय टी करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन 37। Two chemical species X and Y, they combine together to form a product P which contains both X and Y. तो बच्चे X और Y को हम सिंपलर सब्सटेंस में सिंपल केमिकल रिएक्शन से तोड़ नहीं सकते। तो बच्चे X और Y क्या होंगे? X और Y तो एलिमेंट हैं, क्योंकि आप उनको सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते। तो बच्चे X एंड Y आर एलिमेंट्स, P इज अ कंपाउंड। तो कौन से स्टेटमेंट सही हैं? 1 and 3। और बच्चे P हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 1 3 and 4, पर 1 3 and 4 कहीं भी नहीं है। बताओ क्या पिक करें? ऑप्शन ही नहीं है कोई बच्चे, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। चलो, तो बताइए इनके क्वेश्चन पेपर में गलती है क्या? ये समझ आ गया सबको? ऑल राइट, ओके, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? बच्चे टिंडल इफेक्ट सोल्यूशन में नहीं होगा, तो सॉल्ट सोल्यूशन में नहीं है, कॉपर सल्फेट में नहीं है, मिल्क में हो सकता है, स्टार्च में हो सकता है। तो 2 ओके, इसमें भी नहीं दिया हुआ। बहुत गलतियां हैं इनके क्वेश्चन पेपर में। 2 and 4 ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन गिवन ही नहीं है, मतलब गलत ही है पेपर में। तो 2 and 4 होगा इसका, मिल्क में भी होगा, स्टार्च में भी होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 39। Pediatric medicines are generally labeled as oral suspension. These medicines are in the form of colloidal particles. They are generally given to children through mouth. They are labeled as oral suspension. ये क्या हुआ? What do you think? क्या आंसर आना चाहिए इसमें? बच्चे देखो, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ओरल सस्पेंशन है तो माउथ से ही देंगे। तो सेकंड ऑप्शन कोलॉइडल तो नहीं होने चाहिए। अगर सस्पेंशन बोल दिया तो कोलॉइडल कैसे हो सकते हैं? तो बच्चे फिर तो हमें यही पिक करना पड़ेगा, ओनली 2। ये बड़ा गलत सा क्वेश्चन है। दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी गिवन इन द पेपर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं देना चाहिए। ये तो किसी तरीके से मतलब जस्टिफाई नहीं करता। बहुत गलत क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो देखो, लेबल्ड एज ओरल सस्पेंशन। तो बच्चे ओरल सस्पेंशन को तो लेबल ही करेंगे ओरल सस्पेंशन, ये कैसा क्वेश्चन है? चलो
ओके, ये आ गया कोलॉइड्स में से। ओ टेबल, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इसको बड़े ध्यान से करना है। ओके बच्चे, सबसे पहले देखो जेमस्टोन। जेमस्टोन, जेमस्टोन को क्या बोल सकते हैं? सी, सॉलिड जेल। ऑलराइट, तो 6 का सी कहीं है? 6 का सी ये रहा, ये रहा हमारा ऑप्शन, मिल गया। क्योंकि 6 का सी कहीं भी नहीं है। अब आप एक बार चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लो। 1 का ई, इमल्शन। शेविंग क्रीम इज 2F, फोम। स्पंज, स्पंज इज सॉलिड फोम। हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे इज एरोसॉल। Most paints, they are in the form of sols. All right बच्चे, यही सही ऑप्शन है। हमें देखो एक से ही पता लग गया। अगर हम एक सही आइडेंटिफाई कर लें तो फिर सारे सही हो सकते हैं। क्या सही है ये मैचिंग? चेक करिए, इज इट करेक्ट? मिल्क इज इमल्शन। ऑलराइट, चलो, आई होप सबको ये क्लियर है। आगे चलें। ऑलराइट, complete the following table by providing appropriate information required in different columns. Separation technique, fractional distillation, type of mixture, homogeneous. Examples of mixture, alcohol and water. बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लेस देन 25। अगर फ्रैक्शनल है तो ये भी गलत है, लेस देन 25। इज इट क्लियर एवरीबडी? क्वेश्चन की गलती पता चल गई? इनके ऑप्शंस में बहुत गड़बड़ है। ऑल राइट, फ्रैक्शनल है तो लेस देन 25 होना चाहिए ना, मोर देन 25 थोड़ी होगा। ओके, क्वेश्चन 42, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ। अच्छा, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल किसकी बनी होगी? स्क्वामस, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉलुमनर, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल क्यूबॉइडल। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन 43, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। बच्चे, ये तो गार्ड सेल दिखा रहा है, गार्ड सेल, स्टोमेटा, गार्ड सेल। तो ये इसका सही ऑप्शन आ गया, सी। एक्स इज गार्ड सेल इन स्टोमेटा एंड वाई इज एपिडर्मिस। करेक्ट, 43C। ये तो बच्चे एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम आ गया। आइडेंटिफाई द टिश्यू रिप्रेजेंटेड बाय एबीसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट ए एंड सी। अरे बाप रे, ये कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन? Identify ABC, what is function of A and C? Okay, बच्चे, A is apical, B is intercalary, C is lateral. A increases length, C increases girth. तो बच्चे ये सही ऑप्शन है, A। A ऑप्शन पिक करेंगे। क्लियर? बड़ा हॉचपॉच सा क्वेश्चन है, पर आपको इसमें ये देखना है कि एपिकल और इंटरकैलरी या लेटरल क्या रोल कर रहा है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 45, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज A, B, C, D and E. A is cyton, sorry, A is, क्या पता लग रहा है इसमें, B is dendrite। बच्चे देखो, A को तो फिर साइटोन ही मान लेते हैं,
और कोई ऑप्शन नहीं है. A is cyton, B is dendrite, C is myelin sheath, D is axon, E is synaptic button. ये डायग्राम भी सही तरीके से लेबल नहीं है. Yes, we can't see the letters. बच्चे मेरे को तो दिख रहे हैं. ये देखो, ये A है. I'll just write it down for you. A, B, C, D, E. All right. ठीक है बच्चे. Question 46. Find the relationship in first pair and accordingly fill in the blank in second pair. Meristem is to growth, sclerenchyma is to protection, xylem is to water, phloem is to food. Okay. तो बच्चे इधर क्या ऑप्शन आया? ए. बच्चे इन्होंने यहां भी गलत दिया हुआ है. यहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए थी, यहां रिजिडनेस आती है, रिजिडिटी. फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा से आती है. यहां भी गड़बड़ है. क्लियर? ऑप्शन में गड़बड़ है यहां भी. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 47. In a test, a teacher collected answers written by 4 students as definition of osmosis as given below. Read carefully and select the right one. Movement of water molecules from region of higher concentration to region of lower concentration through solvent. Semi-permeable. तो बच्चे इसमें जो करेक्ट दिख रहा है यही दिख रहा है. इसमें बच्चे सॉल्वेंट बोला है पर इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा, तो आप सेकंड ऑप्शन पिक नहीं कर सकते. सी भी गलत है, डी भी गलत है. यहां परमिएबल लिखा है, यहां सॉल्यूट लिखा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. 48. विच मसल एक्ट्स इनवॉलेंटरीली? बच्चे कौन सी मसल इनवॉलेंटरीली एक्ट करेगी? कार्डियक मसल भी इनवॉलेंटरली, स्मूथ भी है, तो 2 and 3. ठीक है बच्चे. 48, 2 and 3. ऑल राइट बच्चे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे. लेट्स फिनिश ऑफ द क्वेश्चन पेपर. दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ. विच मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बच्चे दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. स्पीड बढ़ रही है लगातार. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. 49B. 50. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC? बच्चे यहां क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके. उसके बाद है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. बच्चे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो बच्चे इस इधर फाइंड करो स्लोप. 6 minus 0 over 4 minus 0, तो 6/4, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. 51 का ए. इज इट क्लियर? ऑल राइट. आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो पॉजिटिव वैल्यू निकालो. फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम A to B. बट A to B तक कितना एरिया बनेगा? बच्चे इसको ट्रेपीजियम मान लो, तो सम ऑफ हाफ 4 10 minus 4 6 6 plus 16. हाइट कितनी है? 6 3 22 into 66 मीटर. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस. तो बच्चे इसका आंसर आ गया. ओ 60 मीटर. क्या गलती कर दी हमने? 10 minus 4 6 16. 66 मीटर आना चाहिए, पर इन्होंने तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ. 6 into 6, यहाँ 36, 2 into 6 12, 6 15. बच्चे इन्होंने आंसर ही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ही नहीं है. 66 मीटर बनेगा. इज इट क्लियर? इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है.
ऑल राइट बच्चे, ये क्रोमेटोग्राफी दिखा रही है. दिस इज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. What would you expect to see if ink contains 3 different colored components? बच्चे अगर 3 कलर कंपोनेंट है तो आपको 3 बैंड दिखेंगे. अगर 3 कलर्ड कंपोनेंट है तो 3 बैंड दिखेंगे अलग अलग लेंथ पे. Question 55. Give one application where you can see this technique. बच्चे, to separate drugs from blood. This is given in NCERT book. क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन क्या है? To separate drugs from blood. Question number 56. For separation of what kind of substances is above processes used? For separation of those solutes that dissolve in same solvent. So correct option is C. Leucoplasts are colorless plastids. They store oil, starch, etc. Okay. What is the function of leucoplast? ये तो आंसर दिया हुआ है. They store starch, oil and proteins. देखो इधर ही आंसर दिया हुआ है पैराग्राफ में. Which plastid provides color to fruits and flowers? बच्चे इसका आंसर है chromoplast. Which of the following statement is true? Plastids are present in both plants and animal cells. गलत. Plastids are absent in plant as well as animal cell. गलत. Plastids are present only in plant cell. Right. Okay. C option. They are present only in plant cells. Last question. Which plastid contains green pigments? Chloroplast contains green pigment. This is the correct option. All right. Chloroplast contains green pigment. Is it clear, बच्चे? All right. Okay. तो बच्चे यहाँ पेपर एंड हो गया हमारा. We are through. Okay. बच्चे, this coming Sunday, rather Sunday नहीं, Saturday को ही, सैटरडे को मैं क्या करूंगा, मैथ्स ऑनलाइन जो बठिंडा ऐप है उसमें आपको मैं एक प्रैक्टिस पेपर डालूंगा. प्रैक्टिस पेपर. ऑलराइट. प्रैक्टिस पेपर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न साइंस का. उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे. आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ऑलराइट. इट विल बी ओनली फॉर 1.5 आवर्स. 1.5 घंटे का ही पेपर होगा सिर्फ. और ये पेपर कब होगा बच्चे? सैटरडे को मैं इसको इवनिंग में डालूंगा. सैटरडे को बच्चे मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा. आप ये वाला पेपर अटेम्प्ट करेंगे. ऑलराइट. सो बच्चे, द टेस्ट विल बी डिस्प्लेड एट 5:30. ओके, नॉट एट 5:30. लेट्स से द टेस्ट विल बी डिस्प्लेड एट 6 o'clock. 6 o'clock पे डिस्प्ले हो जाएगा. 7:45 पे बंद. Is it clear, everybody? The test will be displayed on Maths Online Bathinda app. I hope आप सब Maths Online Bathinda app पे हो. All right. So this Saturday evening the test will be displayed at 6 o'clock. 6 o'clock पे ये टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा. 7:45 पे बंद होगा. 60 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. इस चीज का ध्यान रखिएगा. Is it clear? तो आपका जो मार्क्स शो होंगे 10 उसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे. अनअटेम्प्टेड पर मार्क्स आपके 40 में से ही शो हो रहे होंगे. ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा. सारे क्वेश्चन नहीं करने. हाँ जी वैद्य ही बोलो बेटा. Sir, I had joined the science batch in the Maths Online Bathinda app, but when one day I checked, so I was removed from the batch, and I messaged sir several times, but he has not added me into the batch again. Okay. बच्चे आप ना ऐसा करिएगा, मुझे एक बार अपना जो नंबर है ना मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. मैं वो नंबर ऐड कर देता हूँ. ठीक है. Okay sir. ऑल राइट बेटा. ओके. ओके अभी सुचिता, नेक्स्ट सेशन विल बी रिवाइजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं. ओके चलो. सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी. सैटरडे को आपको पेपर देना है. ये चीज याद रखिएगा. नेक्स्ट सेशन जब मैं क्लास लूंगा दैट विल बी ऑन ट्यूसडे. बच्चे
रितंजय डोंट गेट कंफ्यूज्ड, 60 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से सिर्फ आपको 50 करने हैं। सेक्शन ए में, ए सेक्शन में 24 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 20 करने हैं। सेक्शन बी में 24 होंगे, 20 करने हैं। सेक्शन सी में 12 होंगे, उसमें सिर्फ 10 करने हैं। सॉरी, सेक्शन सी में 10 होंगे, उसमें सिर्फ 8 करने हैं। मैं 60 डालूंगा, आपको 50 करने हैं। सेक्शन वाइज 20, 28 इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी पेपर पे, पर टेस्ट सिर्फ 1 आवर 45 मिनट्स के लिए ही डिस्प्ले होगा, उसी में आपको अटेम्प्ट करके सबमिट करना। इज इट क्लियर? चलो ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर। Abhisuchita, I got it. We'll be discussing theory and numericals. All right, bache. I'll be ending this session here. Saturday, you'll be having a test.